اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ in school, so. اچھا، کلمہ یا لفظ عربی میں یا اسم ہوگا نمبر 1، دو یا فعل ہوگا، اور یا آخری نمبر 3 حرف ہوگا۔ آپ لوگ اسم سے بھی واقف ہیں، فعل سے بھی واقف ہیں، اور حرف کی ابھی میں تعریف کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اسم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کتاب کے اوپر کلمہ یا مفرد اکیلا لفظ، وہ 3 قسمیں ہیں اس کی، ایک یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے کہ اب ہم پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسم کیا ہے، عربی میں دیکھنا ہے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ لفظ ہے جو کسی جگہ، شخص یا کسی چیز کا صفت یعنی خامی اور خوبی ہو، اس کو اسم کہتے ہیں۔ یا تو نام ہو کسی چیز کا یا جگہ کا، یا صفت ہو جس کو انگریزی میں ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں، وہ بھی یہاں صرف اسم کہلاتا ہے۔ اب بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، نیچے مثالیں دیکھیں۔ اللہ تعالی یہ اسم ہے، انسان یہ بھی اسم ہے، کتاب بن یہ بھی اسم ہے، مسجد یہ بھی اسم ہے، اور صادقن جو ہے وہ اسم ہے لیکن یہ خوبی ہے، اور کاذبن جھوٹا یہ بھی ایک بدخوئی ہے یا خامی ہے لیکن یہ ہے اسم۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسم جو ہے یا تو نام ہوگا کسی چیز جگہ کا، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام، انسان کا نام، کتاب، مسجد، اور پھر یا خوبی اور خامی۔ اچھا، خوبی اور خامی جو ہے جیسے آپ کے مثال میں دیا ہوا ہے، صادقن جو ہے وہ اسم ہے اور کاذبن بھی اسم ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کی مزید جو ہے وہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میں مثالیں اور دیتا ہوں آپ کو۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے زیدن، کسی شخص کا نام ہے، اسم ہے۔ بکرن اسم ہے۔ جمیلن خوبصورت، یہ خوبی ہے اور یہ بھی اسم ہے عربی میں، یاد رکھیں۔ کبیحن بدصورت، یہ جو ہے یہ خامی ہے لیکن عربی میں کیونکہ صفت ہے اس کو ہم اسم ہی کہیں گے۔ بات کلیئر ہے کہ اسم جو ہے کسی جگہ کسی چیز کا نام ہے، اور یا خوبی اور خامی کو بھی ہم عربی میں اسم ہی کہتے ہیں۔ مثالیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی سر کلیئر ہوئی ہے، الحمدللہ سر کلیئر ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، اس کے آگے ہے فعل۔ اچھا، فعل سے آپ واقف ہیں، انگریزی میں اس کو ورب کہتے ہیں اور اس کی جمع افعال ہے۔ اچھا، یہ بڑا آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم انگریزی نیچے مثال آپ کی لکھی ہے، قرأ اس نے پڑھا، اسی سے قرآن بنا ہے، بہت پڑھی جانے والی کتاب۔ قرأ فعل ہے، اس نے پڑھا، یہ کون سا فعل ہے جلدی بتائیں؟ سیکنڈ ماضی فعل ماضی، فعل ماضی۔ اچھا جی، فعل ماضی۔ کتبہ اس نے لکھا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی۔ سمع اس نے سنا، فعل ماضی۔ اچھا، اب ذرا اپنے نوٹ میں لکھیں، فعل کی اور 6 میں لکھوا رہا ہوں جو آگے چل کے ہمارے لیے وہ بنیں گے۔ نصرہ سواد سے، نصرہ اس نے مدد کی۔ ضربا اس نے مارا، ضربا اس نے مارا۔ فتحا اس نے کھولا، فتحا اس نے کھولا۔ سمعا
उसने सुना, समिआ मीम के नीचे जेर, और शरफा शीन पे जबर, रे पे पेश और फे पे जबर, शरफा वो इज्जत वाला हुआ, वो शर्फ वाला हुआ, ये भी माजी है। और हसिबा हे पे जबर, हे हलवे वाली, सीन के नीचे जेर, बे पे जबर, हसिबा उसने ख्याल किया, उसने गुमान किया। ये 6 आपने अच्छी तरह समझने हैं, क्योंकि फिर आगे चल के हर फेल जो है वो इन में से 6 में से किसी एक का बनेगा। तो नसरा, जरबा, फतहा, समिआ, शरफा, हसिबा, ये सारे माजी हैं। और मैं अभी आपको मुजारे नहीं बता रहा, जब फेल में जाऊंगा तो सारी चीजें खोल के बताऊंगा। अब हमने देखा कि एक इसम है जो हमने पढ़ के समझ लिया ये फेल था, और हमने सिर्फ फेल माजी की मिसालें समझी हैं। फेल पे कोई सवाल हो आपका? शरफा का मतलब बता दें। फेल वाजे है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, माजी में क्यों है, प्रेजेंट में क्यों नहीं? देखें, प्रेजेंट इसकी शक्ल दूसरी होगी। मैं आपको आसान से मुश्किल की तरफ ले जाना चाहता हूं। तो आपको जो यहाँ हाल और मुस्तकबिल दोनों को मुजारे कहते हैं, और उसमें दोनों के माने पाए जाते हैं, वो मैं आगे चल के खोल के बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैंने आपको सिर्फ पहचान करानी है फेल की, कि उसमें जमाना पाया जाता है, और फेल माजी की मैंने मिसालें दे दी हैं आपको। रहा हाल और मुस्तकबिल, अरबी में उसको मुजारे कहते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक हो गया? जी सर। शरफा का जी मतलब सर। बता दें। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है? सर ये शरफा का क्या मतलब आपने बताया? हाँ, वो शरफ वाला हुआ, वो इज्जत वाला हुआ, वो बाइज्जत हुआ। ठीक है, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। हमने कहा कि अरबी में कोई लफ्ज या इसम होगा जो अभी हमने समझ लिया, या फेल होगा जो हमने अभी देखा, या हरफ होगा। तो अब ये बताएं हरफ की क्या तारीफ बनेगी भला? बहुत आसान है। वो इसम जो सॉरी वो लफ्ज जो ना तो नाम हो किसी चीज का, ना खूबी हो, ना खामी हो, और ना फेल हो। ये जो अब तक हम पढ़ चुके हैं फेल और हरफ, अगर वो ना हो तो वो क्या होगा? हर्फ। हर्फ होगा। अब आप मिसालें नीचे देख रहे हैं, बहुत आसान है, कुरान पढ़ने वाले को सब ये समझ में आता है। फी माने मैं, मिन मैंने से, अला मैंने ऊपर या पर, इला उस तक, ये सारे हरूफ हैं, तीनों के तीनों। और वाह हर्फ है, अलग जब आता है वाह माने और होता है। इसी तरह बहुत सारी तफसील हम पढ़ेंगे, बेफिक्र रहें। लेकिन इस वक्त हमें पता चल गया कि अरबी का कोई लफ्ज हो, या तो वो इसम होगा, अगर ऊपर जो कंडीशन हमने पढ़ी है कि नाम होगा या खूबी होगी या खामी होगी, वो इसम, या फेल होगा क्योंकि उसमें जमाना पाया जाता है। अभी माजी की मिसालें आपने देखी हैं, फिर हम आगे हाल और मुस्तकबिल तफसील से पढ़ेंगे जब फेल में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जिंदगी बड़ी आसान हो और आप समझ के चलें। उसके बाद फेल और इसम के बाद अलावा तीसरी किस्म हर्फ है, और हर्फ वो होता है जो न फेल होता है न इसम होता है। और हरूफ की हम बहुत सारी मिसालें पढ़ेंगे। हल्फ जार आप उससे वाकिफ हैं, और फिर हल्फ इस्तिफहाम आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, वो हम आगे चल के करेंगे। ये तीनों चीजें क्लियर हैं आपको? सर अला अला किस का मतलब और हर्फ जो है वो यानी इंडिपेंडेंटली उसका कोई मीनिंग नहीं होगा ना? ये अलग किसी से मिल के मतलब देगा, अलग इसका कोई यानी देखे ना, इला मैंने एक अला पढ़ा है, एन अलिफ एन लाम छोटी ये और खड़ा अलिफ,
अला के माने ऊपर। आप कुरान में पढ़ते हैं अलस समावात है, आसमानों के ऊपर। सर जिस अल्लाह बहुत आता है कुरान में। जैसे और उर्दू में इला, उसके आगे इला है, अलिफ के नीचे जेर, लाम और छोटी ये और फिर खड़ा अलिफ। इला, इला माने तक। सर जिसको दादी फेल बात कहते क्लियर हैं, है जी? इसका क्या कहते मतलब हैं? इमदादी फेल जिसको उर्दू में कहते हैं, ये हर्फ वो चीज है। आप मुश्किल ना बनाएं प्लीज। ये हर्फ है, अरबी में हर्फ कराता है, कहलाता है। हम हर्फ पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ गया है? जी सर हर्फ की दोबारा अगर हम जो अरबी लफ्ज, बड़े गौर से सुने, जो अरबी लफ्ज ना इसम होगा ना फेल होगा, क्योंकि हमने देख लिया कि इसम किसी चीज का जगह का नाम है या खूबी खामी, वो भी नहीं है। और फेल भी नहीं है कि उसमें जमाना भी नहीं पाया जाता, जैसे अभी हमने माजी के पढ़े हैं। अगर ये फेल भी नहीं है, इसम भी नहीं है, तो फिर वो अरबी का लफ्ज हर्फ होगा। बड़ी सिंपल बात। ठीक हो गया? बात क्लियर है? अच्छा, हाँ जी। अब चलें आगे। इसम की पहचान क्या है अरबी में? अब ये समझना है आपने। अरबी में आप देख रहे हैं, अच्छा पहले तो हरकत, जिसको हम जबर जेर पेश कहते हैं, इसको हरकत भी कहते हैं। एक हो तो हरकत, बहुत सारी हो तो हरकत। जबर जेर पेश क्या है? हरकत है। भला इसको हरकत क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? ये जिस भी हर्फ पे आता है तो उसकी इससे अपनी लफ्ज बदल जाती है। इससे हर्फ की लफ्ज बात हरकत बदल करते जाती है हैं, सर। मैं बताता हूँ आप, जोड़ते हैं। जरा चुप रहे, जरा चुप हो जाए, मैं मिसाल देता हूँ। हरकत इसलिए कहते हैं कि बेज पे जब जबर आ जाएगी, पहले हम उसको अरबी में बा पढ़ेंगे, बा, लेकिन जब जबर आ जाएगी तो बा और थोड़ा सा लंबा कर देंगे, ये हरकत है। जेर आएगी तो बे के नीचे जब जेर होगी तो उसमें हरकत क्या आ जाएगी? बे। बे पेश आ जाएगी तो बे के ऊपर पेश होगी तो बो। तो ये हरकत है कि ये इसम, ये हरफ को जो जबर जेर पेश है उसको हरकत दे देती है, इसलिए इनको हरकत कहते हैं। अच्छा, आप जरा लिख लें अपने कागज पे अपने पास कि ये जो हमारा उर्दू में पेश है, इसको अरबी में जम्मा कहते हैं। ज़्वाद मीम गोलते, जम्मा, मीम पे शद जबर है। पेश को क्या कहते हैं? जम्मा। अच्छा, इसकी मिसाल क्या होगी? उज़ुनु, कान को उज़ुनु, अलिफ पे भी पेश, जाल पे भी पेश, नून पे भी पेश, उज़ुनु। तो हर एक हर्फ जो है उस पे पेश है, या वो उसके ऊपर जम्मा है, या हम कहते हैं ये मजमूम है। अलिफ भी मजमूम है, जाल भी मजमूम है और नून भी मजमूम है। लिख लिया आपने? जी जी सर। सर एक दफा दोबारा बोल दीजिए। हाँ सुने, पेश को अरबी में, उर्दू में हम पेश कहते हैं, अरबी में इसको जम्मा कहते हैं। ज़्वाद मीम हे गोलते, देखो झाकन का जम्मा जी। अब इसकी मिसाल मैंने आपको दी है, उज़ुनो, अलिफ पे पेश, जाल पे पेश, नून पे पेश, और इसका माना है कान। उज़ुनो अरबी में, उज़ुनो उर्दू में इसका माना कान है। अब अलिफ पे भी पेश है, जाल पे भी पेश है, नून पे भी पेश है, तो सारों के ऊपर, हर एक के ऊपर जम्मा है। तो जिस हरफ के ऊपर जम्मा हो, हम उसको कहते हैं ये मजमूम है, ये जम्मा वाला है, मजमूम। मीम ज़्वाद मीम वाव मीम। ठीक हो गया? जी सर ठीक है। जी सर। अब हमें पेश का तो पता चल गया, जम्मा। अब आइए जबर।
जबर जिस हरफ पे आए उर्दू में जबर कहते हैं और अरबी में इसको फतहा कहते हैं। फे, ते, हे और गोलते, फतहतुन। जिस तरह पेश को हम जम्मा कहते हैं, इसी तरह जबर को हम फतहा कहते हैं। और उसकी मिसाल लिखें ताकि बात समझ आ जाए। मिसाल है कतबा, काफ पे भी जबर, ता पे भी जबर, बा पे भी जबर। कतबा उसने लिखा, फेल है। कतबा उसने लिखा। तो ये काफ, ता, बा हर एक पे जबर है और हम कहते हैं काफ भी मफ्तू है, ता भी मफ्तू है और बा भी मफ्तू है, क्योंकि उनके ऊपर वो फतह है और जबर है उर्दू में। ठीक हो गया? जी। सर ये मफ्तूह का है जो है वो कौन सा वाला होगा? हलवे वाला फे आपको अच्छी तरह समझ आएगा। हलवे वाला कहेंगे तो आप समझ जाएंगे। जी मफ्तूह बिल्कुल। सर फाता हा और नहीं, फतह जो है ना, फे, ता, हा गोलते, फतह तुन, ये कहते हैं जबर को। और जिस हलफ पे जबर हो उसको मफ्तू कहते हैं। जम्मा वाले को क्या कहते हैं? मजमूम। बॉल पेन। ठीक हो गया? जब जी। हर एक की जबर होगी तो सर वो मफ्तूह होगा। मफ्तू, हर हरफ मफ्तू है, उस पे फतह है। ये चार्ट इंशाल्लाह कल मैं भेज दूंगा आपको, जिस पे ये सारे जो मैं बता रहा हूँ लिखे होंगे ताकि आपको आसानी हो। कल मैं उसको कंपोज करा के भेज दूंगा आपको। ठीक है? थैंक यू सर। लेकिन लिखना अपने नोट्स में है जरूर। अच्छा, अब सुने, पेश भी हो गई, जबर भी हो गई, यानी जम्मा भी हो गया और फतह भी हो गया। बाकी क्या रह गया है? जेर। जेर। कसरा। अच्छा, जेर को कहते हैं कसरा। जेर को क्या कहते हैं? कसरा। काफ कश वाला, सीन, रे और गोलते, कसरा। और इसकी मिसाल लिखें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। ऊंट को क्या कहते हैं भला अरबी में? इबिली। ऊंट को, हाँ शाबाश, इबिली। ई अलिफ के नीचे जेर, बे के नीचे जेर, लाम के नीचे जेर, इबिली। आगे ऊंट। तो अलिफ के नीचे भी कसरा है, बा के नीचे भी कसरा है और लाम के नीचे भी कसरा है ना? जी जी, मकसूर अब बन गया। मकसूर बन गए। अच्छा, अब हमने मुतहर्रिक लफ्ज जितने भी हरूफ हैं उसकी मिसाल समझ लिया मिसाल से, और हमने ये भी समझ लिया कि पेश को जम्मा कहते हैं और जिस हरफ पे पेश हो वो मजमूम है। जबर को फतह कहते हैं, जिस हरफ पे फतह हो उसको मफ्तू कहते हैं। जेर को कसरा अगर अरबी में कहते हैं और कसरा जिस हरफ के नीचे हो उसको मकसूर कहते हैं। ठीक हो गया जी? सर कसरा जी, के ठीक। कसरा की स्पेलिंग दोबारा बता दें। क्या? कसरा वाला कसरा की स्पेलिंग। चैट कश में वाला देख काफ। हाँ सुने, ठीक है, काफ सीन रे, काफ कश वाला। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, या साकन और मजलूम कौन सा हर्फ होता है? जज्म वाला हर्फ क्या कहलाता है जिसपे जज्म होता है? मजलूम। मजलूम कहलाता है। हाँ, साकन या मजलूम वो लफ्ज होता है जिसपे जज्म हो, यानी उस पे कोई हरकत नहीं होती। ऐसा ही है ना? ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब एक और बताएं, आप रोज पढ़ते हैं मुशद्दद। मुशद्दद मतलब है जिसके ऊपर शद हो।
قرآن میں پڑھتے ہیں آپ نا؟ جی اچھا، سر ساکن کی مثال دی آپ نے، جی ساکن کی آپ نے کوئی مثال، کس کی مثال؟ سر یہ ساکن کا آپ نے ابھی بتایا ہے، جو مجزوم ہے یہ مجزوم کہلاتا ہے، لیکن اس کی مثال آپ نے نہیں لکھوائی، جیسے کہ مثال آپ بتا نے دیجیے۔ مثال لکھوائی۔ دیکھیں مجھے پھر غور سے سنیں، میں نے ضمہ کی مثال اذنوں لکھائی ہے جس کا معنی کان ہے، فتح کی مثال کتبہ لکھائی ہے اور اس کا معنی ہے اس نے لکھا، اور کسرہ کی میں نے لکھائی ہے ابلے، اونٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر اب سر ساکن کا بھی آپ نے بتایا نا، تو اس کی مثال آپ نے نہیں بتائی۔ مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جزم کی جو ہے نا مثال نہیں دی، باقی جس طرح سب کی اوہو، مثالیں ہیں۔ جزم دیکھیں، جزم کسی بھی لفظ میں، اچھا میں یہی بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے کسرہ کاف پہ زبر ہے، سین ساک جزم والا ہے، کسرہ رے پہ زبر ہے، اور گول تے ہے کسرتن، تو سین پہ جزم ہے اور مجزوم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جو فتح تم آپ کو لکھایا ہے نا، فا پہ زبر ہے، تا ساکن ہے، جزم ہے اس پہ، اور ہے حلوے والی ہے، اس پہ زبر ہے، فتح تن گول تے کے اوپر دو تنوین ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب آ جائیں کتاب پر، یہ آپ نے لکھ لیا، سمجھ لیا، سر اب آ جائیں۔ سر یہ آپ الفاظ بہت مشکل بول رہے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی، پتہ نہیں اتنی مشکل اردو بول رہے ہیں سر ذرا اردو میں نے سلو کوئی کر دیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، عربی آپ نے پڑھنی ہے، محنت کرنی ہے، ذرا میری بات سنیں۔ آپ نے، میں نے بہت آسان کر کے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ میں اب زبر زیر پیش، کیونکہ آگے یہ سارے آئیں گے، فتحہ ضمہ کسرہ، اور یہ اعرابی حالت آئے گی، تو یہ ساری چیزیں وہاں آپ کے عربی میں آنی چاہیے۔ آپ عربی سیکھ رہے ہیں، میں اس کو اس سے زیادہ آسان کوئی نہیں بنا سکتا جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، سر لہذا ان کے تھوڑی لیے سی تھوڑی سجیشن ہے کہ چیٹ میں دیکھتی جائیں، چیٹ میں کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر رہا ہے، یہ خواتین جو سوال پوچھی جا رہی ہیں بار بار نا، تو ان چیٹ میں دیکھیں کوئی نہ کوئی لکھ کے دے رہا ہے یہ الفاظ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آگے چل دیکھیں، آپ میں محنت کر رہا ہوں، آپ نے اپنے حصے کی محنت کرنی ہے، اور جب محنت کرتا ہے، عربی قرآن کی زبان ہے، آپ کو فوراً سمجھ آئے گی۔ اچھا اب آگے دیکھیں، ہاں مشدد رہ گیا، شاباش۔ اب ذرا لکھیں نا، ربو بے پہ شد ڈالیں اور اس کے اوپر پیش ڈالیں اور را پہ زبر ڈالیں، یہ روز آپ پڑھتے ہیں، ربو، لکھ لیا آپ نے؟ جی را پہ زبر، بے پہ شد اور پھر پیش، ربو، لکھ لیا؟ جی لکھ لیا آپ نے؟ جی اچھا جی اب لکھ لیا۔ اس میں مشدد کون سا لفظ، اس میں مشدد کون سا لفظ ہے؟ با اب غور سے سنیں، ذرا چپ رہیں، ایک آدمی جواب دے اور اسٹوڈنٹ بن کے سنو تاکہ کلاس ڈسٹرب نہ ہو۔ اب ربو ہم نے لکھا ہے، آگے اس کے آگے لکھیں، ربو کے آگے لکھیں را پہ زبر، بے ساکن، بے ساکن آگے، اور پھر بے پیش والی۔ تو وہ جو ربو ہے وہ ہم نے کیا پڑھا ہے، شد والا رب بو، ایک بے ساکن پڑھا ہے اور دوسرا بے اس حرکت کے ساتھ جو بے پہ پیچھے تھی پیش والی۔ تو مشدد لفظ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ ساکن اور پھر اس حرکت کے ساتھ جو یہاں بے پہ پیش تھی تو ہم نے بو پڑھ لیا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر آ گیا۔ اچھا اب ذرا آئیں، اسم کو پہچانتے کیسے ہیں؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تنوین، یہ تنوین کیا چیز ہے؟ ذرا ایک پہلے لکھ لیں تاکہ پھر آپ بات آپ کے سارا مکمل ہوگا۔ تنوین اس کو کیوں کہتے ہیں؟
देखें पहले दो जबरें, दो जेरें, दो पेशें, जब ये हों तो उस लफ्ज को कहते हैं इस पे तनवीन है। दो जबरें, दो जेरें, दो पेशें जब किसी लफ्ज पे आए तो हम कहते हैं इस लफ्ज पर तनवीन है। तनवीन क्यों कहते हैं? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। लिखें आप किताबुन, लिखें किताबुन, दो पेशें बे पे, लिख लिया आपने? किताबुन। अब लिखें किताबिन, सॉरी किताबन, किताबुन, किताबन, दो जबरों के साथ बे के साथ अलफ आ जाएगा, किताबन। और तीसरा लफ्ज लिखें किताबिन, दो जेरें बे के नीचे, लिख लिया आपने? जी सर। अच्छा, अब बहुत आसान है। किस तरह? आपने लिखा किताबुन, फिर लिखा आपने किताबन, फिर आपने लिखा किताबिन, यही लिखा है ना आपने? जी सर। अच्छा, अब मैं जब किताबुन कहता हूं, फिर मैं किताबन कहता हूं, मैं किताबिन कहता हूं, तो आखिर में नून की आवाज आती है। तीनों में आती है, नहीं आती? फिर सुन ले, फिर सुन ले, किताबुन, किताबन, किताबिन, इसलिए इसको तनवीन कहते हैं। दो जबरों, दो जेरों और दो पेशों को तनवीन कहते हैं, क्योंकि उसको जब पढ़ते हैं तो आखिर में नून की आवाज आती है। बात समझ आ गई आपको? जी सर। आ गई है। अच्छा, अब जरा देखें, जिस्म की पहचान ये है, आप देख रहे हैं कि लिखा है तनवीन के नीचे, मसलन कलमुन, कलमन, कलमिन, वरकुन, मोमिनातुन। तो तनवीन आप मोमिनातुन के ऊपर दो पेशे हैं, वरकुन के ऊपर दो पेशे हैं, कलमिन के नीचे दो जेरें हैं, कलमन के नीचे ऊपर दो जबरें हैं और कलमुन के ऊपर दो पेशे हैं। ऐसा ही है? जी जी। अब किसी लफ्ज पर ये तनवीन आए तो वो इस्म है। आखिर में जिस हर लफ्ज के तनवीन आए वो क्या है? इस्म है। ये इस्म की पहचान हो गई। ठीक अस्सलाम हो वालेकुम गया? सर। वालेकुम सर ये जब हम किताबन लिखेंगे तो इसमें बे अलिफ बा लिखेंगे या मतलब बे के ऊपर किताबन सिर्फ दो नहीं नहीं तनवीन डालेंगे? नहीं मैडम, आप बे के साथ जबर लगाएंगे। जब दो पेश जबरें लगाएंगे ना तो जी उसके साथ अगर पहले अलिफ नहीं है तो एक अलिफ ऐड करना पड़ेगा। मतलब किताबन बे अलिफ बा लिखेंगे इसको? देखिए ना, ये आपकी मिसाल में लिखा है ना, कलमन लिखा हुआ है ना, कलमन जी देखा, जी देखा है आपने? जी मीम के जी साथ जी क्या लगाया है? मीम के साथ क्या लगाया है? अलिफ नून। हाँ बिल्कुल, वहां भी अलिफ लगेगा। आप समझ आ गई? जी जज़ाकल्लाह। और से पढ़ेंगे तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मेहनत करेंगे, 4-5 सबक आप दौड़ से चले जाएंगे। पहले अस्बात को आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, आप फौरन कह देंगे 2-3 दिन बाद अरबी मुश्किल है। अरबी कोई मुश्किल नहीं, यकीन माने मैंने किसी के पास नहीं पढ़े, ये मैंने पढ़ा रहा हूँ, किताबें मेरी हैं, आपके पास सामने किताब है। ये मैंने इतनी आसान जबान है कि मैंने खुद सीखी है और 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतनी आसान है। जो एक और बात मैं बता दूं आपको, अगर इस किताब को समझ के आपने पढ़ लिया, पूरी किताब को, मैं लिख के देता हूं कि आप 90% कुरान खुद ट्रांसलेट करेंगे। 90%। ये मेरा तजुर्बा है और हम हर क्लास को पहले चैलेंज करते हैं कि किताब को समझ के पढ़ लो, कुरान तुम 90% से ज्यादा आप ट्रांसलेट करेंगे डायरेक्ट पढ़ के। इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन आपको भी मेहनत करनी होगी, मुझे भी मेहनत करनी होगी। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमें ये पता लग गया कि तनवीन वाला लफ्ज चाहे किताबुन हो, चाहे किताबन हो, चाहे किताबिन हो, ये हमेशा तनवीन पहचान है इस्म की। ठीक हो गया?
اچھا، اب ایک عربی کی اور بات بڑی اچھی طرح سمجھیں. کتاب جو ہے یا کتابن چلے ہم لیتے ہیں، کتابن جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے، کوئی کتاب. لیکن اگر ہم خاص کتاب کی بات کریں تو ہمیں الف لام اس کے ساتھ لگانا ہوگا. الکتابو، الف لام لگ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. اور جب الف لام لگے گا تو تنوین نہیں آئے گی. تنوین کو ہم کہتے ہیں یہ ثقیل اعراب ہے، حرکت. تنوین کون سی ہے؟ ثقیل، کیونکہ دو ہیں تو بھاری ہے. اور جب اکیلا پیش ہوگا یا اکیلا زبر ہوگا، اکیلا زیر ہوگا تو ہم کہیں گے یہ خفیف ہے. حرکت کون سی ہے؟ خفیف، ہلکی ہے. بڑی بات بھی سمجھ آنے والی ہے. اگر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو تو یہ خفیف ہو گئی، دو ہوں تو دو زبریں دو پیشیں ہوں گے تو ثقیل ہو گئی. بات سمجھ آ گئی؟ سر یہ خفیف کا یہ دوبارہ ایک دفعہ بتا دیجیے گا کہ ایک زبر ہو زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنوین جو میں بتا رہا ہوں نا آپ اس پہ اسٹک کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو دوسروں کو کنفیوز کرے. کسی حرف پر اگر ایک زبر ایک زیر یا ایک پیش ہو ہم کہتے ہیں یہ خفیف حرکت ہے. کون سی ہے؟ خفیف، ہلکی. اور اگر جس طرح ابھی ہم نے پڑھے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کلمن 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 ورقن مومناتن، دو ہے نا، اس کو ہم کہیں گے یہ ثقیل اعراب ہے. ساری اعراب نہیں، یہ ثقیل حرکت ہے. یہ کیا ہے؟ اب اگر آپ نے لکھنا ہے، سنیں، آپ کی کتاب پہ کلمن 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 ورقن مومناتن، اس کے آگے جو خالی جگہ ہے وہاں لکھ لیں ثقیل حرکت. اور نیچے ہاں ثقیل سے قاف دو اس والا دو نقطے والا، ثقیل سے کاف یا لام، ثقیل. اور جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں الکتاب الرسول الحمد الغفور، سب کے ایک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ جو ہیں یہ حرکات کون سی ہیں؟ خفیف ہیں. خے فے یہ فے، خے فے یہ فے، خفیف. اب آپ نے دیکھا کہ ایک قسم کی پہچان ہے تنوین، یعنی دو زبریں دو زیریں دو پیشیں. اور اچھا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسم کی پہچان ہو گئی. دو تنوین آئے گی تو یقیناً اسم ہے، سیدھا سیدھا. فعل پہ کبھی تنوین نہیں آتی، یہ یاد رکھیں. یہ اسم کی پکی پہچان ہے. الف لام لگ گیا تو معرفہ بن گیا. روز آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، تو الکتاب کا مطلب کیا ہو گیا؟ خاص کتاب قرآن. یہ ہے اس کی مثال کہ یہ الف لام لگنے سے معرفہ بن گیا. سر یہ ہمیشہ ال کے بعد پیش ہی آخر میں آئے گا؟ الکتابو ہے جس طرح مطلب بے پیش آئے گا ال کے بعد، الکتابی کبھی نہیں آ سکتا؟ نہیں، یہ آ سکتا ہے لیکن ابھی آپ رک جائیں، تھوڑا آگے چل کے سب بتاؤں گا. اس وقت آپ دیکھیں ہم پہچان کر رہے ہیں نا، تو زبر یہ جو دیکھیں اوپر، کیونکہ ہم نے یہ جو الکتاب الرسول اکیلا جب بھی لکھیں گے آپ، اکیلا کوئی جیسے معرفہ اوپر لکھا ہے یا نیچے ہم نے یہ اکیلے لفظ لکھے ہیں اکیلا، تو پھر پیش ہی لکھیں گے. لیکن زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، ہو دونوں سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے اکیلا لکھا ہے، اکیلا ہمیشہ عربی میں جب لکھیں گے تو پیش کے ساتھ لکھیں گے جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک تو تنوین والا
जो भी लफ्ज होगा वो इसम होगा, और फिर अलिफ लाम लगा हुआ होगा तो वो भी इसम होगा, लेकिन उस पर तनवीन नहीं आएगी, और होगा इसमें मारफा, और तनवीन वाला इसमें नकरा होगा। अब गोल ते ये मुअन्नस की अक्सर निशानी है, नॉट ऑलवेज। मसलन आप देख रहे हैं गोलते फातिमातुन, दारिबातुन मारने वाली, दारिबातुन मारने वाली, खाशिअतुन डरने वाली, खशियत अल्लाह का कुरान में आता है ना, खाशिअतुन हामिलतुन नासिबा, खाशियतुन डरने वाली, और कारियातुन पढ़ने वाली, कारी से कारियातुन बना है। ठीक हो गया? सर ये आपने पढ़ने वाली और मारने वाली कहा, तो ये यानी उसको जेंडर फीमेल को ये जाहिर करता है तुन? हाँ जी, गोल थे फीमेल को जाहिर, इसीलिए तो मैंने सारे देखे ना, फातिमा, जारिबतुन, खाशियतुन, सारे माने मुअन्नस के हैं। ठीक हो गया? जी। अब नीचे नोट को पढ़े, खुद समझे, मुझे सवाल करें। सर ये नोट वही है जो आपने ऊपर समझा दिया है कि तनवीन जो होगा वो इसमें नकरा है, और बस जब बस अल बस लग बस जाएगा तो वो इसमें। नोट बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो मैंने समझा दी है। ठीक हो गया? ये कम अज कम 3 दफा कल क्लास नहीं है, आपने पढ़ना है, समझना है। हो गई बात? आगे चलें? अच्छा, आगे बहुत आसान है। आप एक एक सबक को पढ़ेंगे, समझेंगे तो अगला बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप आए इस्म की बुनियादी अक़साम। कौन कौन सी किस्में हैं? इस्म ज़ात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोगों से ज्वाइन नहीं हो रहा था, उन्होंने काफी देर से ज्वाइन किया, बड़ी मुश्किल से उनको ज्वाइन हुआ है ना, बार बार ज्वाइन करने के बाद। तो सर आज पहली क्लास भी है, तो सर अगर ये थोड़ा सा हम इसको ही जरा समझ लें तो सब लोग इसको समझ लें, फिर हम आगे चले। जरा आज हम अपनी स्पीड जरा अगर स्लो कर लें सर। मैं पहले सबक को फिर दोहरा देता हूँ जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, और जो आप हैं आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं आज आपकी इस तजवीज़ को आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आइंदा मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे पढ़ाना है, समझाना है और आगे चलना है। और आपको हफ्ते में 3 क्लासेस हैं, मेहनत करेंगे तो सीखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई चीज बगैर मेहनत के नहीं आती। आप कुरान को नहीं समझेंगे, याद रखिए, ये हमारी क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले पूछेगा, तुमने डिग्रियां ले ली, तुमने पढ़ लिया, तुमने सारी काम सीख लिए, वो हिदायत जो मैंने भेजी थी ना उसको समझा ना उस पर अमल किया। सिर्फ पढ़ने से याद रखिए, सवाब उस वक्त होगा जब पढ़ के समझ के इस पर अमल करेंगे। समझेंगे जब अरबी आएगी। मुझे कुरान उसी वक्त समझ आया जब मैंने अरबी समझी। ऐसा समझ आया कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता, इतना उसने एहसान किया है। लिहाजा मैं आप इसको और अगला सबक आप रोज पढ़ के आएंगे जो मैंने पढ़ाना है, ताकि आपकी डिफिकल्टीज आपके सामने हो, समझ आए। ये सब चीजें अगर करेंगे तो आपको अरबी 5-6 सबक ढंग से कर लें, इंशाल्लाह आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। अब वापस आइए, मैं पहला सबक फिर पढ़ा रहा हूँ। कलमा लफ्ज को अरबी में कलेमा कहते हैं, और ये लिखा हुआ है कलेमातुन, आखिर को साकन पढ़ते हैं, मैं उसको कलेमा पढ़ रहा हूँ। काफ पे जबर है, लाम के नीचे कसरा है, जेर है, और मीम पर जबर है या फतहा है। और ये भी हमने समझ लिया कि अकेला लफ्ज मुफरद, अकेला लफ्ज जो अकेला कलमा होता है, या इसम होगा या फेल होगा या हरफ होगा, और कोई चीज नहीं हो सकता। अरबी का हर लफ्ज या इसम है या फेल है या हरफ है। हमें समझना इसलिए आसान है कि हम ऑलरेडी वाकिफ हैं इसम और फेल और हरफ से, लेकिन जो थोड़ा बहुत फर्क है उसको हमने अभी समझना है। इसम
नाम को भी कहते हैं किसी चीज और जगह के, और सिफत यानी खूबी और खामी को भी इसम ही कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अल्लाह, अल्लाहु, इंसानुन, किताबुन, मस्जिदुन, ये सारे नाम हैं, है ना नाम। लेकिन सादिकुन भी इसम है, वो खूबी है, काजिबुन भी इसम है, वो खामी है, ज़ैदुन इसम है, खास नाम है एक बंदे का, बकरुन नाम है, जमीलुन खूबसूरत, ये आपका है इसम, अरबी में इसको इसम ही कहते हैं, लेकिन ये खूबी है। और कबीहुन बदसूरत जो है ये भी इसम ही कहलाएगा, अगरचे ये खामी है, क्योंकि अरबी में हर नाम को भी खूबी और खामी को भी इसम कहते हैं। बात क्लियर हो गई? जी सर। सर ये जो लफ्ज है ना काली मातून, ये भी इसम का लफ्ज बनेगा? इस पे भी तो ता पे दो पेश आ रहे हैं। ये बिल्कुल इसम है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लफ्ज क्या है? लफ्ज इसम है। अब आ जाइए, क्लियर हो गया। फेल, फेल हम रोज जानते हैं, और उर्दू में भी फेल का, अंग्रेजी में भी पता है कि ये वो लफ्ज है जिसके अंदर किसी काम का करना या होना पाया जाता है। खाना या खाता, ये सारे जो हैं, खाना एक फेल है। और अगर माजी में खाया है, खाया, उसने खाया, ये माजी है। वो खाता है, ये हाल है। वो खाएगा, ये मुस्तकबिल है। ऐसा ही है। उर्दू में हम वाकिफ हैं। मैंने अभी फेल को आसान करने के लिए आपको सिर्फ फेल माजी बताया है। दोनों फेल जो हैं, मुस्तकबिल और वो हाल, वो आगे बताऊंगा, क्योंकि तब्दीलियां आती हैं। मैं अभी आपको बड़ा आसानी से आगे लेके चलना चाहता हूँ। तो फेल जो है, फेल माजी जो है, वो अरबी में हमने देख लिया। करआ, उसने पढ़ा। कतबा, उसने लिखा। समिआ, उसने सुना। नसरा, उसने मदद की। ज़रबा, उसने मारा। फतहा, उसने खोला। समिआ, उसने सुना। शरफा, वो इज्जत वाला हुआ, वो शर्फ वाला हुआ। हसिबा, उसने मालूम किया, उसने ख्याल किया या उसने गुमान किया। तो आपने देखा कि सारों में फेल माजी हैं, गुजरा हुआ जमाना पाया जाता है, ये फेल है। आगे जब करेंगे तो एक से एक खोल के बताऊंगा इंशाल्लाह। हरफ हमने समझ आ गई बात कि अगर इसम भी नहीं है तो फेल भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? हरफ होगा। कुरान भरा पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप रोज पढ़ते हैं अल्हम्दु, अल्लाह के साथ लाम लगा हुआ है, लिल्लाही, तो ये लाम हरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, असल में लाम लगा हुआ है साथ, और ये लाम हरफ है। तो लिल्लाही, अल्लाह के लिए। जब हरफ किसी इस्म के साथ मिलता है तो फिर माने देता है। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ठीक हो गया? तो हरफ जो है, अब हमने कुरान भरा पड़ा है हरूफ से। फी माने मैं। इसका मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें तो कुरान में आप पढ़ते हैं फिल अर्दे, जमीन में आता है ना, तो फी हर्फ है और फिल अर्दे जमीन में। अब उसके माने बन गए। मिन मैंने से। मिन रब्बिकुम, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से आगे ना। अला, अलस समावाति, आसमानों पर। इला, इला लाहौर, इला इस्लामाबाद, इस्लामाबाद तक, लाहौर तक। आगे बात समझ में हरूफ की? जी 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 सर। सर ये जितने भी हरूफ हैं, ये इंग्लिश में जैसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये उनकी ट्रांसलेशन लग रहे हैं। जैसे हम उसमें इन, ऑन, टू, तो इनको हम मतलब उससे रेफर कर सकते हैं कि ये इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। जैसे फी मैंने मैं है,
ٹھیک ہے. اور آپ میں کے معنی انگریزی میں بالکل کر سکتے ہیں، سے کے معنی کر سکتے ہیں، پر اللہ کے کر سکتے ہیں، الہ کے کر سکتے ہیں. انگریزی سے جو عربی سے انگریزی کتابیں ان میں وہی لکھا ہے، لیکن کیونکہ ہم اردو میں سمجھ رہے ہیں تو میں اس لیے اردو پہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ جی. اچھا اب چلیے، بہت آسان ہو گیا ہمارے اس نالج کے بعد کہ ایک تنوین ہے، دو زبریں، دو پیشیں، دو زیریں حرف کے آخر میں آئیں گی، جیسے قلمن، 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 برکن، ممناتن. جس کے حرف، جس لفظ کے اوپر، حرف نہیں، حرف الف بے حروف ہیں، یہ لفظ ہے، کلمہ ہے. قلمن، 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 برکن، ممناتن، سب پہ تنوین ہے، سارے اسم ہیں. تو تنوین کس کی پہچان ہے؟ جس کے آخر میں تنوین آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ سر اسم ہوتا ہے. آپ سارے مت بولا اسم کریں، ہوتا ہے سر. اسم ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اچھا اسی طرح کتاب، کتاب معرفہ نکرہ ہے، کوئی کتاب. قلم، کوئی قلم. لیکن جب کتاب کے ساتھ الف لام لگے گا تو تنوین ہٹ جائے گی، ایک پیش رہ جائے گی، خفیف ہو جائے گا. اور الکتاب یہ معرفہ ہے، اور آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب. الکتابوں سے مراد قرآن ہے، خاص کتاب ہے. تو الف لام معرفہ کو، ساری نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، اور تنوین ہٹ جاتی ہے اگر پہلے تنوین ہو. خفیف اس پہ حرکت آتی ہے کہ بے پہ پیش ہے ایک، اور کتابن پہ جو دو پیشیں ہیں. اسی طرح الرسول، خاص رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد، خاص تعریف. الغفور، خاص بخشنے والا یعنی اللہ تعالی. تو ہمیں دو پہچانیں مل گئی ہیں اس وقت تک اسم کی. ایک، اگر تنوین آئے گی تو اسم ہوگا، اگر اس کے شروع میں الف لام آیا ہے اور خفیف اعراب ہے، خفیف حرکت ہے، تو وہ جو ہے وہ اسم ہے. گول تے نشانی ہے اکثر، ناٹ آلویز. بتاؤں گا آگے کہ گول تے نشانی ہے مؤنث کی، اسم کی. فاطمتن، ہاں فاطمتو، ضاربتن، خاشعتن، قارئتن. کیونکہ فاطمہ نام ہے تو اس کے اوپر ایک پیش آئی ہے. باقی جو ہیں ضاربتن مارنے والی، خاشعتن ڈرنے والی، قارئتن پڑھنے والی. تو یہ گول تے سب کے آگے اس لیے کہ یہ سارے مؤنث کے لفظ ہیں. بات کلیئر ہے؟ جی سر. کلیئر الحمدللہ. اچھا اب میں نے آج تو آپ کی بات مان لی ہے، آئندہ ذرا اس کو تیار کر کے اگلا سبق پڑھ کے آئیں. میں سمجھنے کی بات نہیں ہے، جو سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ بھی آئے گا تو آپ کو پتہ تو ہوگا نا کہ یہ مشکلات ہیں میری، اور جب میں پڑھاؤں گا تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. لہٰذا آپ برائے مہربانی پرسوں پوری تیاری کے ساتھ آئیے. اور آج تو آپ نے کوئی صرف 45 منٹ پڑھا ہے، تو کوئی سوال ہے اب کلیئر کر لیں. کوئی سوال نہیں؟ سر کہاں تک تیاری کریں ہم؟ کتنے صفحے تک، کتنے صفحے تک کریں تیاری؟ یہ جتنا سمجھ آتا جا رہا ہے نا. دیکھیں کل میں 2 سبق پڑھاؤں گا، پرسوں ساری 2 سبق. یہ ہاں میں ابھی اچھی بات کی آپ نے، میں بتاتا ہوں آپ. یہ جو آپ پڑھیں گے کہاں تک؟ اسم کی بنیادی اقسام. آ گیا نا سبق؟ ٹھیک ہے. اس کا اے پیج، اگلا پیج 12، اس کے بعد سبق نمبر 1 شروع ہے، اسماء یعنی ناؤن. اچھا یہاں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، آپ سب لوگ سمجھ لیں. کوئی زبان جو ہے نا اس کو سیکھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے بنیادی گرامر، اور ایک ہے اس کی ذخیرہ الفاظ یا وکیبولری. مجھے بتائیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا شلمبرجے میں،
एक अफगानी था ड्राइवर, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता था, उसको एक लफ्ज लिखना नहीं आता था, ग्रामर का उसको पता नहीं था। तो जबान तो जानता था लेकिन उसको ग्रामर का कोई पता नहीं था। तो जबान जखीरा अल्फाज है और उस ग्रामर, उस जबान को समझना है। दो चीजें जरूरी हैं, एक है ग्रामर बेस्ड बुनियादी और एक है अल्फाज, जखीरा अल्फाज। आप सबक नंबर 1 में देख रहे हैं, कल जरा अच्छी तरह देख के आइए कि इनके माने जितने लिख सकें लिखें। तो मैंने कल आपको सबक नंबर 1 काफी हद तक कराना है, ठीक है, परसों। और अल्फाज ज्यादातर कुरान के हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी कुरान के नुक्ता नजर से, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आप तीसरे चौथे सबक के बाद आप सीधे सीधे कुरान में उतर जाएंगे। सबक नंबर 1 बे अगर देखें आप तो सूरह बकरा से अस्मा की मिसालें, सबक नंबर 1 बे। किताब को जरा स्कैन करें, देखें कि वोकैबुलरी जो कुरान की है, चाहे वो अस्मा हो या हरूफ हो या आपके अफ़आल हो, कुरान, दिस बुक इज लोडेड विद एग्जांपल्स फ्रॉम कुरान। जी सर। ठीक हो गया? जी सर। एक बात याद रखें, एक बात सुने, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही सीखेंगे। मेरी मेहनत मशरूत है आपकी मेहनत के साथ। अगर मैं मेहनत में कमी करूं तो आप मेरा गला पकड़े, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। ये मौका अल्लाह ने दिया है आपको, मेहनत करिए। हफ्ते में 3 दिन क्लास है, वीकेंड आपका फारिग है, तो कोई बहाना नहीं है आपके पास मेहनत न करने का। और क़यामत के दिन अगर कुरान के मजे लेने चाहते हैं, कुरान को समझ के इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो अरबी सीख ले। अल्लाह ने मौका दिया है हम सबको, हम इससे फायदा उठाएं। ठीक हो गया? जी ठीक हो गया जी सर। सर 10:30 तक नहीं थी, हमें तो बताया था 9 से 10:30 तक होगी। नेट का प्रॉब्लम था, वो फिर हमने रिजॉल्व किया, इसलिए थोड़ी लेट शुरू की है क्लास। आप कुरान के अगर मेरी क्लास में है ना, तो मैं जमाने से टाइम का बड़ा सख्त पाबंद हूँ। मोमिन को पाबंद होना चाहिए। तो आइंदा ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह क्लास शुरू होगी और 10:30 तक जाएगी, और आपने बिल्कुल तैयार होके आना है। जी सर एक क्वेश्चन है कि इस तरह हम जब कुरान पाक पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हर लफ्ज या तो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा? पूरी अरबी जबान में यही कुछ है, कुरान में भी यही है। बिल्कुल ठीक है जी सर। और सर आपकी जो बुक है, अगर आप उसका नाम बता दें, हम वो ले लें तो हमें ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर हमारे पास इन हैंड, सर आपकी कोई बुक है तो हमें बता दें, हम इन हैंड अपने पास भी कोई बुक रखें। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन से शहर से? भाई कराची से बोल रही हूँ, मुझे भी बुक चाहिए। हाँ, तो कराची से बोल रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। alfawz.pk, AL छोटा ALFAWZ, alfawz.pk, ये मेरी वेबसाइट है अल्फौज की। आप वहां से जाके फ्री डाउनलोड कीजिए, पूरी किताब आप डाउनलोड कर लेंगे वहां से। तो यहाँ से मंगवाने की कोई जरूरत नहीं, उसको प्रिंट करा लें डाउनलोड करके। जी ठीक हो गया? जी इंशाल्लाह। और सवाल? सर मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैंने ऑर्डर किया हुआ था पहले किताब का, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। आपने भेज दिया है? जी मैंने ऑर्डर किया हुआ था, वो जो नंबर था ना एक, जहाँ से मैंने ऐड ली थी, उनको मैंने भेज दिया था कि मुझे ये बुक चाहिए। अच्छा, किताब इंशाल्लाह कल मेल हो जाएगी। सुने, कल मेल हो जाएगी जो आप जिस किसी ने भेजा है, तो आपको कल इस्लामाबाद वालों को तो कल परसों मिल जाएगी। वरना ये किताब, सुने, ये किताब कोई आपका बंदा आके अल्फौज एकेडमी E11 में है, एड्रेस हम दे सकते हैं आपको, आके वो पिक कर सकता है, दिन हो रात हो किसी वक्त आए। ठीक हो गया? तो सर मुझे सेंड कर दे, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी, आना बहुत मुश्किल है। आपको आ जाएगी, कल हम भेज रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अजायब को
اور حکم سر یہ جو پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں نا ان کو انشاءاللہ جنہوں نے مجھے ایڈریس دیے تھے ان کو انشاءاللہ فرائیڈے یا تھرسڈے تک کتاب مل جائے گی انشاءاللہ. نہیں پہلے مل جائے گی پنڈی میں. کل ہم اس کو صبح سویرے پہلا کام کریں گے. اور لالا اچھا موسیٰ والوں کو کب ملے گی؟ جی لاہور والوں کو لالا موسیٰ ہاں لالا موسیٰ والے اب اللہ پہ ڈپینڈ کریں. ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, ڈاکانے والوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم کل صبح یہ ساری جو ہیں ہمارے پاس باقی کوئی 8 کتابوں کا آرڈر ہے, وہ پیک ہوئی پڑی ہیں. کل صبح ہم نے اس کو بھیج دینا ہے. سب سے پہلا کام ہم نے یہی کرنا ہے. سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ سر ایک کوشچن ہے کہ تو ہمیں کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیے کتاب آپ کو آپ کہیں گے آپ کو واٹس ایپ پہ کتاب کا بھیج دیں گے PDF. ہم پیسوں پہ نہیں.